Good afternoon. Okay, so see, yesterday we did meaning and importance of finance. Three types of finance. Number one, personal finance. Second, corporate finance, and third, public finance. We were on to sources of finance. We could cover only basis of time. The first part we had covered yesterday. And now we will start with ownership and control. See, it's very easy. It's not that difficult. इसीलिए मैंने उसको थोड़ा अभी कैसे उसको किया है, चार्ट में बनाया है और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है. Okay, I've not given explanation about it because it's really easy about. अभी basis of ownership and control, जो second part है आपका sources of finance का. Is the screen visible and I'm audible? Screen visible है ना? Okay. Yes, good. Now, basis of ownership. Ownership means whether you have invested the money into the business is yours or borrowed fund. See, ownership means whether the amount of money invested in the business is your own money or you have borrowed it from the outside. So there are two parts on the basis of ownership. One is owned and other one is borrowed. So now when we talk about owned means my own money which has been invested in the business. So what can be my own capital? Equity capital is my own capital. Preference is my own capital. Retained earnings means every year in the business there are so many transactions related to expenses and incomes. Okay, now there are hundreds of and thousands of expenses and incomes because of which we get either profit or loss. Now whenever there shall be a profit, whenever there will be a profit, that has to be reserved for tomorrow, that has to be kept reserved for future business. Am I clear with you all? So that type of reserve is known as retained earnings. Retained means leftover. Earnings means profit. So the leftover profit which has to be kept in the business for the future expenses and incomes, and then what project has to be taken up, we need cash for it. Okay, and for the future business we need cash. To purchase the stock we need cash. So we need to reserve some amount of money for future business, and that we keep it from our current year's profit. So that type of profit which is kept reserved is known as retained earnings. आया समझ में? जो प्रॉफिट हम लोग कल के बिजनेस के लिए बचा कर रखते हैं उसको बोलते हैं retained earnings. ठीक है? Retained means leftover and earnings means profits. Okay, so that is my own profit, no? I don't have to give it to anybody else. I have given dividend to equity, dividend to preference shares, interest to debentures. I've already distributed from my profit. The leftover profit is reserved for the future business. So that is my own money that I'm investing into the business maybe in the future. Am I clear with you all? You can write it in the chat box. Yes, no. सिर्फ Y और N लिखो मैं समझ जाऊंगी. Yes, very good. Okay, very nice. Now we have convertible debentures. See, owned money में ना हमारे convertible debentures भी आते हैं. क्यों? अब आप बोलोगे मैम debentures तो borrowed funds होते हैं. Yes, debentures are always borrowed funds. See, if you see the borrowed funds, the second column, second bracket is given debentures. The second heading is given debentures. So always remember debentures, bonds, loans are the borrowed funds. Now when it is borrowed fund, how it can be owned fund? एक ही चीज में दो तो नहीं हो सकते ना, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती हैं एक ही के बारे में. या तो वो ओन्ड होगा या तो बोरोड होगा.
तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. इफ यू कैन सी, प्लीज जूम इन and you will be able to see it properly. Convertible debentures, this one, see this one. Okay, now because this is convertible debenture, what do you mean by convertible debentures? Convertible debentures are those debentures which after redemption are to be converted into equity shares, which after redemption are to be converted into equity capital. So ultimately in the future debentures are going to convert and take a form of equity capital, no? Yes, which can be converted easily, yes. But into what? Converted into what? Equity capital. So ultimately that has to take a form of equity capital, which is my biggest owned capital. Am I clear with you all? Yes, no? Please write it in the chat box. Yes, very good. Okay. ओके, ठीक है. तो ये मेरा ओन्ड कैपिटल होता है. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है. रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स. ये जो डिबेंचर के टाइप्स होते हैं ना सारे, ये सारे बोरोड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. Yes, Shubham, I'll repeat. See, only convertible debentures are owned fund, owned capital, owned finance. Other all debentures are borrowed funds, borrowed finance. Why? Because convertible debentures in the future will ultimately take a form of equity capital, no? Convertible debentures are those debentures which in the future, after redemption, has to take a form of equity capital to be converted into equity capital. Therefore, they are known as convertible debentures. So, these debentures are going to convert it into equity. And equity is what? Owned or borrowed? Owned. Am I clear now, Shubham? Yes, Shubham. Am I clear now? Okay, very good. So next we have venture fund or private equity. What is venture fund? Venture means starting up, new startup. Venture means जिनकी एंट्री होती है, नई नई एंट्री मार्केट में ली है. तो वेंचर फंड और प्राइवेट इक्विटी भी हमारा, क्योंकि वेंचर फंड में इक्विटी ही होता है. जब आप वेंचर फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, दैट मीन्स यू आर बाइंग इक्विटी ऑफ द कंपनी. और प्राइवेट इक्विटी तो समझ ही आ रहा है, इक्विटी है. तो इक्विटी इज माय ओन्ड कैपिटल, ठीक है. अभी बोरोड में आ जाइए. लोन्स फ्रॉम बोरोड में कौन से फाइनेंस होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से मेरे पास अमाउंट ऑफ मनी रेज हो सकता है बोरोड के फॉर्म में, लोन लेकर. इफ आई डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी विथ माई सेल्फ, what will I do? I will shut the business down. No. Why will I shut the business down? I have another option to borrow the money, no? I have another option to borrow money in the form of loan, in the form of debentures, in the form of bonds, etc. Now, loan can be taken from two different institutions. One is financial institution, any financial institution. You can take loan from them. Yes, bank, borrow money from bank. ठीक है. कमर्शियल लोन, कमर्शियल लोन मीन्स बैंक से जब हम लोन लेते हैं, when we take loan from banks, that is known as commercial loan. So commercial banks also give loan to the people in need. आया समझ में? And the other form is debentures. So we talk about debentures, we say bonds, it's one and the same thing. Am I audible to all? See, I think my speaker is not working here. So am I audible? Yes, now am I audible?
Now can you hear me? Yes. Yes, Kiran, you have any doubt? You raised your hand. किरण, कुछ डाउट है बेटा? Okay. Now let's shift to another part. रुखसाना, क्या हुआ बेटा? किरण हैंड रेस किया है. ओके फाइन. यू कैन लोअर योर हैंड. नो, गलती से अगर रेज हैंड हो जाए ना तो लोअर कर देने का फिर ऑप्शन है उसका. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अब भी वॉइस नहीं आ रही है? अभी तो आ रही है रिया बेटा, आवाज आ रही है? आ रही है ना सबको? ठीक है. चलो, ये हो गया आपका ओनरशिप का. अब आते हैं जनरेशन. बेसिस बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन. एक होता है इंटरनल जनरेशन. अभी ये वो जनरेशन नहीं है जो हमारे मॉम डैड की जनरेशन और अभी यंगर जनरेशन. ये वो नहीं है जनरेशन. ये जनरेशन मतलब कहाँ से पैसा जनरेट होता है. ठीक है, वेयर डू माई मनी जनरेट फ्रॉम. एक होता है इंटरनल जनरेट, एक होता है एक्सटर्नल जनरेट. यानी कि एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल. इंटरनल मीन्स इनसाइड द कंपनी एंड एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द कंपनी. So when we say internal, ध्यान से सुनो. When we say internal, we have our equity capital which is internal. Equity में से जितना भी पैसा आएगा, equity बिकेगा पैसा आएगा, प्रेफरेंस बिकेगा पैसा आएगा, retained earnings मतलब मेरे खुद के प्रॉफिट्स, जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतने ज्यादा रिजर्व्स होंगे. ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, वेंचर फंड, इक्विटी, ये सारा सेम है. इंटरनल मीन्स ओन्ड. इन शॉर्ट इफ आई से इंटरनल मीन्स ओन्ड. तो जो भी आपका ओन्ड है ना वो आपका इंटरनल होगा, क्योंकि आपका खुद का है ना, वो कंपनी का खुद का है, वो किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. हाँ. तो अब बोरोड में क्या, सॉरी एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा? एक्सटर्नल में वो रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगे जो मुझे देना है किसी को. देखो, दो रिटेन्ड अर्निंग्स है. आप बोलोगे इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी. हाँ, लेकिन एक्सटर्नल वाली जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, वो आपकी क्या कहते हैं, जो मुझे अभी प्रॉफिट्स बांटने हैं डिविडेंड के फॉर्म में. हाँ, वो होता डिफरेंट. तो मुझे जो डिविडेंड के फॉर्म में बांटने हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ये वो रिटेन्ड अर्निंग्स है, मतलब रिटेन्ड प्रॉफिट्स. रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है ना तो लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं. तो लायबिलिटीज जो मुझे पे ऑफ करनी है वो एक्सटर्नली तो है, एक्सटर्नली तो है, वो बाहर की है जो मुझे पे करना है. सेल ऑफ एसेट्स. सेल ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स बेचकर जो मैंने लाया वो बाहर का है. मतलब मेरा ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. मेरा बिजनेस ये नहीं है एसेट्स को बेचना, बट फिर भी मैंने एसेट्स को बेचा तो वो एक्सटर्नली हो गया ना. इंटरनल तो नहीं हुआ. इंटरनल मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड. तो ये इंटरनल तो नहीं हुआ, ये एक्सटर्नल हो गया. ओके, समझ आया सबको? सो दिस फॉर्मेट इज डन. How many sources of finance we have? Three types of sources of finance. Basis of time, basis of ownership and control, and basis of generation. Okay. Now we shift on to another slide. Now we have venture capital as a source of finance. We will discuss it little in detail. What do you mean by venture capital? Venture capital is private equity capital. सबसे पहले तो it is private equity. ठीक है, मतलब borrowed नहीं होता ये. प्राइवेट पर्सनल लेवल पे हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं ये. ओके. Now typically it is provided by outside investors to a new business that promises to grow fast. देखो क्या होता है इसमें. एग्जाम्पल, आई एम ओपनिंग अप अ बिजनेस, a new business, a new company, to which I feel people are not interested in investing in my company because they feel, because I'm new in the market, तो मेरी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी वो तो मुझे डाउट होगा. मतलब लोगों को डाउट होगा कि मेरी कंपनी नहीं चली तो उनका पैसा डूब जाएगा. ठीक है, तो इस डर से वो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट
नहीं कर रहे हैं, सारे लोग उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेबल है, इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, अब सारे लोग तो वही कंपनी में इन्वेस्ट करें, मेरी कंपनी इन्वेस्ट, अगर मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, हाउ विल माय कंपनी वर्क, वेयर द फाइनेंस विल बी, लाइक वेयर आई विल गेट द फाइनेंस फ्रॉम। समझ में आया? और जब फाइनेंस ही नहीं होगा तो मेरी कंपनी में प्रोडक्शन कैसे होगी, परचेज कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा, मैं लेबर को वेजेस कैसे दूंगी, दूसरे खर्चे कैसे होंगे, मार्केटिंग के खर्चे कैसे करवाऊंगी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कहाँ से भरूंगी। सो आई नीड फाइनेंस, नो? सो nobody is ready to invest in my company. There comes an angel investor. क्या बोलते हैं उनको? एंजल इन्वेस्टर। अब वो क्या करते हैं? कहते हैं, समझो बैंक, समझो एंजल इन्वेस्टर में ना एक बैंक है, उसने बोला मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, आपकी कंपनी छोटी है, बिल्कुल न्यू बॉर्न जैसी है, अब आपकी कंपनी को फाइनेंस चाहिए, और मेरी मेरी बैंक को भी, मैं भी चाहता हूँ मैं किसी को लोन दूं तो मैं इंटरेस्ट अर्न करूँ, वहां से डिविडेंड अर्न करूँ, शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, तो मुझे भी इंटरेस्ट और डिविडेंड चाहिए, मेरा भी पैसा ब्लॉक पड़ा है, तो आप मेरे से ले लो और मुझे हर महीने, हर 6 महीने डिविडेंड दे देना। ठीक है, बैंक को भी तो चाहिए कुछ इंटरेस्ट, कुछ डिविडेंड। ठीक है ना? तो क्या होता है, बैंक आती है, समझो एग्जांपल ले लो बैंक का, बैंक आएगी, वो कहेगी आपकी कंपनी में मैं वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के लिए रेडी हूँ, यानी कि कोई भी अगर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, छोटी कंपनी है, स्टार्टअप करने के लिए, इनिशियली जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई आपको फंड देता है ना, उसको कहते हैं वेंचर कैपिटल। और वो जो फंड होता है ना, वो इक्विटी कैपिटल होती है, कंपल्सरी। वेंचर कैपिटल में कभी भी प्रेफरेंस नहीं होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं, ऑलवेज वेंचर कैपिटल इज इक्विटी कैपिटल। फर्स्ट लाइन पे लिखा है स्लाइड पे, इज इट इज अ टाइप ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, ये गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल। ठीक है, सबको ये समझ आ रहा है? यस, समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। ओके, तो टिपिकली क्या होता है, ये आउटसाइड इन्वेस्टर कोई आता है टू 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 द न्यू बिजनेस। हमारे नए बिजनेस में कोई बाहर का बंदा आया जिसने प्रॉमिस किया कि आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है अगर मैं आपको फंड दूं तो वही लिखा हुआ है देखो, टिपिकली इट इज प्रोवाइडेड बाय आउटसाइड इन्वेस्टर टू अ न्यू बिजनेस। न्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेंचर कैपिटल में, न्यू। पहले का स्टेबल और सेटअप बिजनेस जो होगा ना, उनको वेंचर कैपिटल नहीं होता है, उनके लिए वेंचर कैपिटल नहीं होता है। ये किन के लिए होता है? जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो नए नए बिजनेस होते हैं मार्केट में। एंड जो बाहर के लोग आके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि हम ये कंपनी ग्रो करेंगे। तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको पता होता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की है। क्यों? क्योंकि कल को कंपनी डूब गई तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा, है ना, तो रिस्की है। बट उसके बावजूद भी, इन डिस्पाइट ऑफ दैट, वो ऑफर करते हैं अच्छे खासे पोटेंशियल अमाउंट्स, मतलब वेंचर कैपिटल के फॉर्म में इक्विटी खरीद कर कंपनी को अच्छा खासा वो अमाउंट देते हैं, जिससे वो कंपनी भी उनको रिटर्न्स देती है। रिटर्न्स तो देने पड़ेंगे, इक्विटी को क्या देते हैं? डिविडेंड। तो इनको भी, वेंचर कैपिटलिस्ट को भी क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, है ना। अब उन्होंने रिस्क लिया है, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो मैं भी तो कुछ रिटर्न दूं इनको। सो दे विल बी awarded with certain type of returns which are known as dividend. ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस। नोट डाउन करो, देखो ध्यान से देखो, जो कंपनीज अभी 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 स्टार्टअप हुई हैं या छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाता है। दैट आर बिलीव्ड, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको हम ऐसे इग्नोर करके छोड़ नहीं सकते। उनके लिए ये बिलीव किया जाता है कि वो आगे चल के लॉन्ग टर्म में
आगे चल के फ्यूचर में वो ग्रोथ लेंगे, उतने पोटेंशियल हो जाएंगे कि वो हमको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सके। आया समझ में? वेंचर कैपिटल जनरली कम्स फ्रॉम वेल ऑफ इन्वेस्टर्स, जो अच्छे खासे इन्वेस्टर्स होते हैं। देखो, अब मैं वेल ऑफ इन्वेस्टर नहीं हूँ, समझो। वेल ऑफ इन्वेस्टर का मतलब होता है जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा बैकअप होता है अमाउंट ऑफ मनी के, चलो 20,000 डूब गए तो कोई बात नहीं, अब मेरे पास और भी पैसे पड़े हैं, ठीक है। जैसे बिरला टाटा जैसे लोग, है ना, बड़ी बड़ी बैंक्स। जो बेचारी खुद की बैंक ही छोटी है, वो क्या वेंचर कैपिटल में पैसा डालेगी? नहीं। अब मेरे पास बैकअप नहीं है पैसों का, मेरे पास है ही सिर्फ 5 लाख रुपए मेरी सेविंग्स की। क्या वो 5 लाख रुपए आप रिस्क वाले में, रिस्क जहाँ पे ज्यादा होगा वहां लगाना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास है ही ऑलरेडी इतना इनफ, इतना कम कि आप उसको, you won't be, I mean, able to digest if that amount of money will be wasted in loss. Am I right? But those persons who have already in their account, they have more than 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs. So for them, 3-4 lakhs is not a big deal. For them, 3-4 lakhs is okay investing. समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर 3-4 लाख नुकसान हो भी गया तो उनके पास बैकअप तो है ना, दूसरे 30-25-50 लाख तो पड़े ही हैं। तो उनको तो रिस्क लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस आए बढ़ेगा कैसे, है ना? और अगर वही 3 लाख 4 लाख डालने वाला बिजनेस बढ़ गया तो उनकी तो बल्ले बल्ले, मतलब वो और कमाने लगेंगे, उनके 50 लाख 1 करोड़ बन सकते हैं। तो वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। पर ये उनके लिए है जो वेल ऑफ इन्वेस्टर्स है, जिनके पास ऑलरेडी अमाउंट ऑफ मनी का बैकअप होता है, अच्छा खासा उनके पास सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है, और अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, ठीक है। और ऐसी इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स तो पहले आती हैं वेंचर कैपिटल बनने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेंचर कैपिटल जनरली कम्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से कैपिटल आ सकता है? वेल ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड इन द मार्केट, ठीक है। वो ही कंपनीज जो, वो ही इंस्टीट्यूशंस जो ऑलरेडी, जिनके पास मार्केट में स्टेबल होने की कैपेसिटी है, वो ही तो इन्वेस्ट करेंगे छोटे छोटे बिजनेसेस में उनको बड़ा बनाने के लिए। जो खुद ही छोटे हैं वो सामने वाले को कहाँ से फंड देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? इतना हाँ या ना बोलो। I'm waiting for your answers in the chat box. Okay, good, good, good. चलो आगे बढ़ते हैं। However, it does not always take a monetary form. अब जरूरी नहीं है monetary form ले. It can also provide the technical or managerial expertise. मतलब आपने किसी को एडवाइस दे दी कि आप ना कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट मत करो, ऐसे इन्वेस्ट करो, ये वाले प्रोजेक्ट में पैसा मत डालो, ये वाले प्रोजेक्ट पे डालो, बहुत अच्छा रहेगा, ये जो अभी मेट्रो बन रहा है ना उसमें पैसा डालिए, आपका है ना, हाँ, पैसा बढ़ेगा उसमें, ये तो अंडरस्टूड है, बढ़ेगा ही उसमें। तो ये किसी को अगर आपने अपना टेक्निकल, मैनेजरियल, अगर आपने अपना एक्सपर्ट शेयर किया, एडवाइस दी, वो भी तो वेंचर कैपिटल ही हो गया ना। कि आपने बोला आप, आपकी कंपनी के पास 2 करोड़ है, ठीक है, इन 2 करोड़ को ना आप है ना डिवाइड करो, 5 करोड़ लगाओ मेट्रो में जो बन रहा है थाना का, और 5 करोड़ लगा दो किसी ऐसी कंपनी में जो सीमेंट कंपनी है, वो तो हमेशा बढ़ती है क्योंकि हर जगह कोई कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, ठीक है। 5 करोड़ लगा दो यहाँ पे, 5 करोड़ लगा दो वहां पे। मतलब आप, आपने उनको एडवाइस दे दी, उनको टेक्निकल सपोर्ट दे दिया, उनको मैनेजरियल एडवाइस दे दी कि आप अपना ये जो 2 करोड़ है ना उनको कैसे लगाओ। आपके पास नॉलेज है, कंपनी के लोगों के पास नॉलेज नहीं है, तो आप जाएंगे वहां पे एक्सपर्ट बन के और अपनी एडवाइस देंगे कि ये 2 करोड़ का जो पैसा है वो कहाँ पे आपको यूज करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। इज ऑल्सो नोन एज वेंचर कैपिटल। क्यों? क्योंकि आपने उनको गाइड किया कि जो आपके पास स्टार्टअप 2 करोड़ है ना, स्टार्ट करने के लिए जो 2 करोड़ है उसको कैसे लगाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेंचर कैपिटल इज टिपिकली एलोकेटेड टू स्मॉल कंपनीज, ये तो मैंने ऊपर भी पढ़ा। स्मॉल कंपनीज के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटल, छोटी छोटी नई नई कंपनीज विथ एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। कि हमें पता है कि इसमें एक एक्सेप्शन है
कि इनकी ग्रोथ अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, or to the companies that have grown quickly and appear poised to continue to expand. अब ऐसी कंपनीज में भी वेंचर कैपिटल लगाया जाता है जो ग्रो तो कर रही हैं लेकिन उनको एक्सपैंड करना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए भी वेंचर कैपिटल ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हाइब्रिड फाइनेंसिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। जो ऊपर हमने ये चार्ट पढ़ा ना, उसी में ही एक था वेंचर कैपिटल। ये देखो, वेंचर फंडिंग, हाइब्रिड फाइनेंसिंग। अब मैं बताऊंगी हाइब्रिड क्या होता है। ये हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं अभी तक, तो वेंचर कैपिटल को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा। अब आते हैं हाइब्रिड फाइनेंस पे। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड मींस मिक्स। ध्यान रखो, जब भी वर्ड हाइब्रिड आएगा ना, मतलब मिक्स। See, after 10 minutes, you again have to join for the meeting because the limit of that 40 minutes has come down to my meeting. तो अभी आप फिर से 9 मिनट दिखा रहे हैं मुझे, तो आप 9 मिनट्स के बाद मीटिंग को वापस सेम लिंक से ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब आगे देखो। द हाइब्रिड फाइनेंसिंग डेफिनेशन इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। कभी भी हाइब्रिड वर्ड आ जाए ना, मतलब मिक्स, मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, किसी भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड की मीनिंग यही होती है। अब यहाँ पे दो हाइब्रिड फाइनेंसिंग क्या होते हैं? हाइब्रिड फाइनेंसिंग मतलब कहाँ से पैसा आया। हाइब्रिड मतलब दो जगह, दो कॉम्बिनेशन। तो कौन से दो जगह से पैसा आया? कॉम्बिनेशन से। थोड़ा डेट से पैसा आया, डेट मतलब डिबेंचर, डेट मतलब बोरोड फंड्स, डेट का मतलब बोरोड फंड्स। अब बोरोड फंड्स में तो बहुत कुछ होता है, डिबेंचर्स होते हैं, लोन होता है, बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, लोगों के डिपॉजिट होते हैं। आप लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। आप लोगों से फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, तो उसका मतलब क्या है? ये फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर का है, तो आफ्टर सच 1 ईयर you will have to pay them back with the amount of interest. Therefore, this type of capital, fixed deposit, public deposit, is also known as borrowed fund because you're borrowing for the period of 1 year, 2 year, 3 years, etc. You're borrowing for certain time of money. Sorry, a certain period of time. You're borrowing it for certain period of time. There, and you have to give them back. No, that is known as borrowed fund. Something which has to give back is not my own because I know in future I will have to pay them back. That is not my own money. ओन अगर खुद का कैपिटल होगा तो आप किसी को वापस क्यों दोगे? वापस देने वाली बात तो तब आती है ना जब किसी और का है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे दोनों हाइब्रिड फाइनेंसिंग वो होती है जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, दोनों के फीचर्स होते हैं, बोरोड फंड्स के भी और इक्विटी मतलब ओन्ड फंड्स के भी। यहाँ पे डेट का मतलब है बोरोड फंड्स, इक्विटी का मतलब है ओन्ड फंड्स। ठीक है, समझ आया? अब नीचे देखो थर्ड लाइन पे, हाइब्रिड फाइनेंसिंग इज वेयर डेट एंड इक्विटी मीट इन द मिडिल। दोनों के फीचर्स को मिलाकर ऑफर किया जाता है इन्वेस्टर्स को फॉर पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ। ओके, आई रिपीट वंस अगेन। हाइब्रिड फाइनेंसिंग मींस जब दोनों के फीचर्स इंक्लूड होते हैं फाइनेंस में, बोरोड फंड्स के भी, इक्विटी के भी। मतलब आपको कोई एक कैपिटल नहीं दी जा रही है। इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सब एक कैपिटल हो गई, प्रोप्राइटर कैपिटल मतलब ओन्ड कैपिटल। सिर्फ आपको ये नहीं दिया जाएगा, आपको मिक्स करके, मिक्स जैसे दाल बनी हुई है सिर्फ दाल नहीं दे रहे, राइस बनी हुई है सिर्फ राइस नहीं दे रहे, मिक्स करके आपको दोनों सर्व कर दिया, उसको दाल खिचड़ा बना दिया, है ना? तो it is something like that way, combination of both the capital, one is borrowed and the other one is owned capital. So when we mix the capital of borrowed and owned is known as hybrid financing. ठीक है? अब ठीक है, तो हाइब्रिड फाइनेंसिंग क्या होता है? जब हम अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को मिक्स इक्विटी देते हैं, थोड़ा डेट दे दिया, थोड़ा इक्विटी। ठीक है, अगर मेरे पास आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 5 लाख रुपए, अब मैं आपको बोलूंगी सारे 5 लाख रुपए ना आप इक्विटी मत लीजिए,
सारे 5 लाख आप बोरोड फंड्स भी मत लीजिए, मतलब डिवेंचर्स भी मत लीजिए। तो क्या करें, 2.5 लाख का इक्विटी और डिवेंचर्स आपने मिक्स करके दे दिया। यस, बोरोड मीन्स जो मैंने उधार लिया, उधार। समझ आ रहा है शुभम? बोरोड मीन्स उधार लेना। खुद का पैसा नहीं होता तो आप बाहर से उधार लेते हो, उसको बोलते हैं बोरोड। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े। इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं इसमें, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो लाइकवाइज हाइब्रिड फाइनेंस के भी दोनों पहलू देखे जाते हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ। तो रिस्क इज अकीन टू एनी इन्वेस्टमेंट। अभी देखो, कभी भी आप इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क तो होगा ही ना। कोई भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क विल बी अटैच टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पर बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अगर आपने रिस्क लिया तो फ्यूचर में अगर बढ़ेगा तो आपके रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। वही लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे ना तो वही लिखा हुआ है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये था आपका हाइब्रिड फाइनेंस। अब आ जाओ मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब हमारा चैप्टर का जो आधा पार्ट है ना वो हो गया। शुभम आप क्या पूछ रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बोरोड मीन्स इक्विटी मैम। मतलब क्या बोल रहे हो आप? आई डिड नॉट गेट व्हाट आर यू आस्किंग फॉर। बोरोड इक्विटी कैसे होगा? इक्विटी मतलब खुद का फंड, ओन्ड फंड, खुद का पैसा। बोरोड मीन्स बाहर से उठाया हुआ पैसा। इक्विटी इज नेवर बोरोड फंड। हाँ, इक्विटी मतलब अलग बात हो गई, ओन्ड फंड। और बोरोड मीन्स उधार वाला पैसा। ठीक है, ओके ना। अभी हमारा जो ये चैप्टर है ना उसका आधा पार्ट हो गया, which was meaning of finance. Now we are shifting on to the another part of the chapter, which is 1 minute. Let me connect charger to my laptop. बंद हो जाएगा नहीं तो, give me a second. Yes. So, what do you mean by finance? We have seen that there are different types of finance. We've also seen that we have sources of finance, which we have also covered. Now we are coming on to the next part of the chapter, which is meaning of financial management. Now, what do you mean by financial management? See, देखो, मैनेजमेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है। टू मैनेज द फाइनेंस, टू स्ट्रेटेजिकली प्लान, टू ऑर्गेनाइज, to see what direction I have to take, and to control our financial activities is known as financial management. Simple. In any organization or in any institution, if you are planning for investing the money in the future, you are planning in right now where yes, am I audible? Am I audible now? वो मेरे यहाँ पे आज कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। I did not come to know. I was out of the meeting.
आई डिड नॉट कम टू नो दैट। तो अब तो आवाज ठीक से आ रही है सबको? मेरे ख्याल से ना अभी ये मीटिंग पूरा हो जाएगा तो आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन विजिबल है ना आगे सबको?